معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، سورہ نازعات 1 سے 5 تک کی تفسیر کل میں نے پیش کی تھی۔ آج سورہ نازعات 6 سے لے کر کے 14 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ 1 سے لے کر کے 5 نمبر آیت تک کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی تھی جو کفار و مشرکین کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالیں گے اور مومنوں کی روح نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نکالیں گے۔ 1 سے 5 تک کی آیتوں میں ارواح کے نکالے جانے کا ذکر تھا، اور 6 سے لے کر 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور کفار کے انکار قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد 11 سے لے کر کے 14 تک کفار کے انکار قیامت کی تفصیل ہے اور اس کا رد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نازعات آیت نمبر 6 سے 10 تک کی تفسیر پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزائے گی لرزانے والی۔ یہ لرزائے گی لرزانے والی سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زلزلہ آ جائے گا، زمین لرز جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ساری ارواحیں جسموں کو چھوڑ کر نکل جائیں گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑتے ہوں گے اور پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزائے گی لرزانے والی۔ یہاں یوما میں یوما سے پہلے لتبعثن فعل محذوف ہے، اور اسی فعل محذوف کا مفعول ہے یوما، اور میم پر اسی کا زبر ہے۔ در حقیقت یہ اس طریقے سے ہے، فعل محذوف کے ساتھ اگر اسے پڑھیں گے تو لتبعثن یوما ترجف الراجفہ، اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا کہ تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے جس دن لرزائے گی لرزانے والی، یعنی جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دوبارہ تو تم زندہ کیے جاؤ گے اور ساری ارواحیں جسم سے مل کر زندہ ہو جائیں گی۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ میں یہ پہلی بار سور پھونکنے کا ذکر ہے، اور زندگی تو
दूसरी बार सूर फूंकने से मिलेंगी। पहली बार सूर फूंकने से तो जिंदगी फना हो जाएगी, अरवाह जिस्म को छोड़कर निकल जाएंगी, दुनिया में जलजला आ जाएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर यौम तर्जुफुर राजिफा में जब पहली बार सूर फूंकने का जिक्र है तो उसमें जिंदा होना कैसे हो सकता है? उस दिन तो मौत आने वाली है, फना होने वाली है, रूहें निकलने वाली है। तो कहते हैं कि तत्बउहर रादिफा 7वीं आयत में उसी का जिक्र है, यानी यौम तर्जुफुर राजिफा में अरवाह जिस्म को छोड़कर निकल जाएंगी। तत्बउहर रादिफा, और एक मुद्दत के बाद जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सुर फूकेंगे तो फिर जलजला आएगा, फिर जमीन लरस जाएगी और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर से जो अरवाहें जिस्म को छोड़कर निकल गई थी और जिस्म तबाह बर्बाद हो गया था, दुनिया में जलजला आया था, दुनिया तहस नहस और बर्बाद हो गई थी, फिर वो सारी अरवाहें जिस्म में आकर मिलेंगी और फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। यहां एक चीज जिक्र फरमाते हैं कि राजिफा के लुगत में 2 माने हैं। एक माना तो यह है कि हरकत करना, और दूसरा माना यह है कड़क तेज आवाज। जैसे कि सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यौमा तर्जुफुल अर्दु वल जिबाल, जिस दिन आसमान और जमीन थर थर आ जाएंगे। तो यहां पर हरकत का माना है। और सूरह आराफ आयत नंबर 91 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, बस उनको हौलनाक कड़क ने पकड़ लिया। यहां दोनों माने हैं, 2 माने हैं इसके। तो कहते हैं कि यौमा तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन जमीन व आसमान लरस जाएंगे, या जिस दिन इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज कड़कदार हौलनाक आवाज से दुनिया फना हो जाएगी। तो जो पहले जिक्र किया है यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा, तो यौम तर्जुफुर राजिफा में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली बार सूर फूकेंगे तो वो उनकी कड़कदार आवाज से दुनिया में लर्जा तारी हो जाएगा और सारी अरवाहें जिस्म को छोड़कर निकल जाएंगी। तत्बउहर रादिफा में दूसरी बार जो एक मुद्दत के बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे उसका जिक्र है कि फिर सारी अरवाहें लौटकर अपने जिस्म की तरफ आ जाएंगी और फिर लोग जिंदा हो जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यौमा कुलूबुन यौमइदिन वाजिफा, उस दिन बहुत से दिल लरज रहे होंगे, अबसारुहा खाशिआ, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। ये बहुत से दिल लरज रहे होंगे, ये किन लोगों के दिल मुराद हैं? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ पर कुफ्फार मुशरिकीन और मुनाफिकीन मुखातिब हैं और उन्हीं का जिक्र है। कुलूबुन यौमइदिन वाजिफा, यानी उस दिन बहुत से दिल लरज रहे होंगे। कुफ्फार मुशरिकीन चूंकि दुनिया में इस बात का इनकार करते थे कि कयामत कायम नहीं होने वाली है, दोबारा जिस्म को जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा रूह जिस्म की तरफ लौटाई नहीं जाएगी, तो जब उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा और वो जिंदा हो जाएंगे तो उस दिन वो थर्राएंगे और उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी कि हमने तो दुनिया में ये कहा था कि इंसान को दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, कयामत कायम नहीं होगी, ये बोसीदा जिस्म को फिर दोबारा खड़ा नहीं किया जाएगा, मगर आज तो हम लोग खड़े हो गए और हमारे अंदर दोबारा रूह डाल दी गई है, हमें जिंदगी मिल चुकी है, अब तो हिसाब किताब होने वाला है। तो उनके दिल लरज रहे होंगे और निगाहें झुकी हुई होंगी कि आज हम क्या जवाब देंगे। आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, वो कहते हैं कुफ्फार मुशरिकीन, यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, क्या हम जरूर मरने के बाद जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे, लौटाए जाएंगे?
यानी उसके दिल लरज क्यों रहे होंगे क़यामत के दिन, और निगाहें झुकी क्यों होंगी? इसलिए कि वो दुनिया में ये कहा करते थे कि क्या हम मरने के बाद दोबारा लौटाए जाएंगे, क्या फिर हमें हश्र में हमारे लिए हश्र होगा, क़यामत कायम होगी? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उनके दिल लरज रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसा कहते थे कि क्या हम जरूर मरने के बाद दुनिया में बाद की जिंदगी की तरफ लौटाए जाएंगे। यहाँ पर लफ्ज हाफिरा है, यह हाफिरा कहते हैं, यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा। हाफिरा का माना है उल्टे पांव पलटना। उल्टे पांव पलटने का मतलब है कि जिस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजार कर फिर वो फना हो चुके थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसे जिंदगी यानी उसी तरीके की जिंदगी अता फरमाएगा जैसे वो दुनिया में थे। तो अब इसका माना यह हो जाएगा कि मुशरिकीन ये कहते थे कि आया हम मरने के बाद फिर पहली जिंदगी की तरफ लौटाए जाएंगे। इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा। और आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़ीरा, क्या हम जब गली हुई हड्डियां हो जाएंगे। नखीरा कहते हैं बोसीदा, चूरा, चूर चूर हड्डियां, बोसीदा हो जाना, रेजा रेजा हो जाना। यानी कुफार मुशरिकीन ताज्जुब से ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते थे, और आप जो डराते थे क़यामत से, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से, तो उसका वो इनकार करते हुए कहते थे कि जब हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, चूरा चूरा हो जाएंगी, बोसीदा हो जाएंगी, जिस्म गल सड़ जाएगा, एक आदमी का जिस्म मिट्टी होकर दूसरे आदमी के जिस्म की मिट्टी से मिल जाएगा, और उसके जर्रात फिर दूर दराज इलाके में तेजोतुंद हवा से मुंतशिर हो जाएंगे। भला ऐसे हालत में फिर दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है? दोबारा जिंदगी कैसे मिल सकती है? ये हो ही नहीं सकता है कि इंसान मर जाने के बाद फिर उसको दोबारा जिंदा किया जा सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है आयत नंबर 12 में, फिर वो आगे कहते हैं यक़ूलून, क्या हम इज़ामन लमरदूदून फिल इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़रा क़ालू तिलका इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, कि अगर हम दोबारा लौटाए गए और दोबारा हमें जिंदगी मिली, जिंदा किए गए, तो ये तो बहुत बड़े खसारे की वापसी होगी। खसारे की वापसी का मतलब यह है, वो कहते हैं कि खसारे की वापसी यूं होगी कि जब इंसान मर जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसके जर्रात मुंतशिर हो जाएंगे, तो जब उसको दोबारा जमा किया जाएगा तो हो सकता है उंगली छूट जाए, नाखून छूट जाए, बाल छूट जाए, दांत छूट जाए, आंख कहीं गुम हो जाए, कान कहीं रह जाए। तो फिर समझो कि अगर दोबारा जिंदा किया गया तो फिर टूटा फूटा इंसान होगा, सारी चीजें जमा नहीं होंगी, तो ये तो बहुत बड़े खसारे की वापसी होगी। इस तरीके से वो कहते थे। और इसकी एक दूसरी तफसीर भी बयान करते हैं, और वो दूसरी तफसीर यूं बयान करते हैं कि कुफार मुशरिकीन यूं कहा करते थे कि वो तो बहुत खसारे का दिन होगा। और खसारे की वापसी का मतलब यह है कि जिस तरीके से आज दुनिया में हम ऐशो इशरत कर रहे हैं, अगर हम लोग गलत रास्ते पे होते तो फिर खुदा हमको ऐशो इशरत की जिंदगी क्यों देता? तो हम सही रास्ते पे हैं, इसलिए तो अल्लाह ने हमको ऐशो इशरत की जिंदगी दी है। मुसलमान गलत रास्ते पे हैं, अगर उनके कौल के मुताबिक दोबारा जिंदा किया जाएगा इंसान को, तो मुसलमान खसारे में होंगे। जिस तरीके से आज वो दुनिया में तकलीफ में है, दुनिया में मुसीबत में है, दुनिया में परेशानी में है, वहां भी परेशानी रहेंगे वो, क्योंकि उनको पसंद नहीं किया जा रहा, इसलिए तो परेशानी में रखा गया है। तो जब वो लौटेंगे उनके लिए खसारा होगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं, इसलिए हमें ऐशो आराम मिला है, तो हम लौटेंगे तो हमें खसारा नहीं होगा, हमारे लिए तो ऐशो आराम की जिंदगी होगी, इससे बेहतर जिंदगी होगी। और उसके बाद फरमाते हैं कि दूसरी जिंदगी हमारे लिए खसारे की बाइस नहीं होगी, हमारे लिए ऐशो आराम की जिंदगी होगी। चुनांचे सूरे कहफ आयत नंबर 36 में एक काफिर के कौल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि वमा अज़ुन्नु साअता क़ाइमा, वो काफिर कहता है कि मैं ये गुमान नहीं करता कि कयामत कायम होने वाली है। वलइन रुद्दितु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम फीहा मुनक़लिबा, खैरम मिनहा मुनक़लबा, कि अगर हम दोबारा लौटाए भी गए तो
मैं इस दुनिया से बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। अगर मुझे दोबारा लौटाया भी गया बरोज कयामत तो मैं इस दुनिया से वहां पर बेहतर जिंदगी पाऊंगा, क्योंकि यहाँ जब ऐशो आराम की जिंदगी है फिर हमें लौटाया जाएगा तो ऐशो आराम ही की जिंदगी की तरफ लौटाया जाएगा, भला खसारे की तरफ। हाँ, मुसलमान जो कह रहे हैं कि लौटाए जाएंगे, अगर उसके कौल से वो सही है तो यहाँ भी वो परेशान है, वहां भी परेशान ही रहेंगे। इस तरीके से आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ कुफ्फार और मुशरिकीन, तुम ये कहते हो, या ऐ मेरे महबूब आप कुफ्फार मुशरिकीन से कह दीजिए कि ये लोग ये इस्तिहाला कायम करते हैं कि भला बोसीदा हड्डियां, गली सड़ी हड्डियां, जो जिस्म के मिट्टी बन चुका है, सारी चीजें तबाह बर्बाद मुंतशिर हो चुकी हैं, सारी की सारी चीजें गल सड़कर खत्म हो गई हैं, उसको दोबारा भला कैसे जिंदा किया जा सकता है? और अगर जिंदा भी किया गया, लौटाया भी गया तो कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ रहेंगी, तो ये खसारा होगा, नुकसान होगा, यानी आधे अधूरे लोग लौटेंगे। तो ए महबूब आप उनसे फरमा दीजिए, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफार मुशरिकीन से फरमाया और अपने महबूब से कुफार मुशरिकीन को यह आयत पहुंचाने के लिए कह दिया, महबूब आप उन्हें कहने दीजिए, फरमा दीजिए फ़इन्नमा हिया ज़ज़रतु वाहिदा, कि वह जरूर सिर्फ एक झिड़की होगी। तुम कहते हो कि इतनी बड़ी बात कैसे वजूद में आ सकती है कि गले सड़े लोगों को कैसे जिंदा किया जाए, मिट्टी हो जाने के बाद कैसे फिर उसको वजूद बख्शा जाए, तुम ये कह रहे हो? महबूब आप उनसे कह दीजिए कि वो तो ये सिर्फ एक झिड़की है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर दिया है कि तुम फूको, वो फूकेगा और सब चीजें वजूद में आ जाएंगी। बैक वक्त सारी चीजें वजूद में आ जाएंगी, सारी अरवाहें अपने अपने जिस्म से, मुंतशिर जिस्म जो होगा वो सब के सब एक जगह जमा हो जाएगा, अरवाहें जिस्मों से मिलेंगी। फायदा हम बिस्साहिरा, और अचानक वो जो है मैदान हश्र में होंगे। फायदा हम बिस्साहिरा, फिर वो अचानक मैदान हश्र में होंगे। आयत नंबर 14 में अल्लाह ने फरमाया फायदा हम बिस्साहिरा, फिर वो अचानक हश्र के खुले हुए मैदान में होंगे। ये साहिरा का मैदान, साहिरा मैदान को कहते हैं, और शहर का माना नींदें उड़ जाना भी होता है। और यहां पर एक मुराद ये भी है कि मैदान फैदा हम सारा, कि अचानक वो एक सफेद हमवार मैदान में होंगे, यानी मैदान कयामत में वो सब मैदान हश्र में सब के सब हाजिर होंगे। और ये कौल ये है कि यहाँ साहिरा से दुनिया की जमीन मुराद है, ये कौल ये है कि वो आखिरत की जमीन मुराद है। और ये भी फरमाते हैं कि साहिरा उसे इसलिए कहा गया कि वो मैदान ऐसा मैदान होगा, वो जमीन ऐसी जमीन होगी कि उस पर चलने वाले की खौफ से नींदें उड़ जाएंगी। तो कुफार मुशरिकीन मारे दहशत के, मारे खौफ के उस जमीन पर कांपते हुए चलेंगे और वो सब के सब जाकर के मैदान हश्र में हाजिर हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम जिस इस्तिहाला को पेश करते हो, जिस चीज को तुम नामुमकिन और मुश्किल समझते हो, वो तुम्हारे रब के लिए नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। वो तो सिर्फ एक आवाज का इंतजार कर रही है। सारी चीजें वो आवाज सुर फूकी जाएंगे और सब के सब मैदान कयामत में हाजिर हो जाएंगे।